پاکستان کی سمندری ساحلی پٹی ارمارا سے کراچی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ قدرتی ساحل اپنی خوبصورتی، شان و شوکت اور طرح طرح کی حیاتیاتی قسموں کی وجہ سے دنیا کے بہترین ساحلوں میں سے ایک ہے۔ قدرتی طور پر حسین، طویل ساحل اور سمندری حیات سے مالا مال ماحول نے اسے سیاحوں، ماحولیاتی محافظوں اور مچھیروں کے لیے جنت بنا دیا ہے۔ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سمندر سب سے بڑی دولت ہے۔ کراچی میں قدرت اگر آپ تلاش کریں تو سمندر ہی ہمارا رشتہ ہے قدرت کے ساتھ۔ آپ ایک ماسک پہن کے جا کے مناظر دیکھیں، اللہ نے سمندر کے نیچے کیا بنایا ہے، ایک الگ دنیا ہے، اٹ از پیراڈائز انڈر واٹر۔ لیکن ہر کوئی پاکستان کے سمندر کی قدر نہیں کرتا۔ کراچی میں خوش آمدید۔ اس شہر کی ابتدائی معمولی حیثیت اب ایک بڑے شہر کی گہما گہمی میں گم ہو چکی ہے۔ 18ویں صدی میں کراچی ایک مستحکم تجارتی بندرگاہ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی مختلف ثقافتوں، مذاہب اور نسلوں کا آنا جانا لگا رہا۔ کچھ آپس میں گھل مل گئے، بعض ایک دوسرے پر چھا گئے۔ ہر کوئی اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نقش چھوڑتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نو آبادی نے بڑھتے بڑھتے مچھیروں کی ساحلی بستیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آج کراچی ایک بڑی بندرگاہ اور صنعتی مرکز بن چکا ہے، جہاں اس کے اصلی باشندوں کا رہن سہن نئے شہری پھیلاؤ میں گھٹا گھٹا سا نباہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ کراچی کا معمولی سی تجارتی بستی سے ایک بڑا شہر بن جانا بتاتا ہے کہ ترقی تو ہونا ہی تھی، لیکن اسے خود انحصاری پر قائم ہونا چاہیے تھا۔ اراضی کی تقسیم اور افادیت اور پانی تک رسائی میں مستقبل اور حال کی ضرورت پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے تھی۔ خاص طور پر تیسری دنیا کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسی کہ پاکستان کی معیشت ہے۔ یہاں بدعنوانی، بے ڈھنگی منصوبہ بندی اور ٹیکس کا واہی تباہی نظام باور کرا دیتے ہیں کہ یہاں کے شہری ایسے ماحول میں خوب پنپتے منافع خوروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ کراچی کے ساحل کے ساتھ ساتھ حالیہ تبدیلیاں ظاہر کرتی ہیں کہ 4 قسم کے گروپ یعنی علاقائی نباتات اور حیوانات، مچھیرے، عام شہری اور اراضی کے مالکان ان ناجائز اور بے ہنگم ترقیاتی کاموں سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ کراچی کا 75 کلومیٹر طویل ساحل کیپ مونزے سے پورٹ قاسم تک پھیلا ہوا ہے۔ شہر کے قریب ہی خوش منظر پیراڈائز پوائنٹ، مقبول تفریح گاہ فرینچ بیچ، ہاکس بے اور سینٹ سپیٹ واقع ہیں، جن کے پیچھے شرقی اور غربی حصے کے پانیوں میں تمر کے جنگلات ہیں۔ شہر کے برابر چلتی ساحلی پٹی پر کراچی پورٹ، جزیرہ منوڑا اور ڈی ایچ اے کے سامنے ساحلی تفریح گاہ واقع ہیں۔ ساحل سے پرے انڈس ڈیلٹا کے کنارے بنڈال اور بڈو کے جزائر ہیں۔ قریب ہی پانی کی تنگ پٹیاں یعنی کریکس ہیں جو پورٹ قاسم تک چلی گئی ہیں۔ ان ساکت پانیوں میں تمر کے جنگلات کی جڑوں میں ساحلی نباتاتی اور حیواناتی زندگی کے قدیم ٹھکانے ہیں۔ ایویسینا میرین تمر کے جنگلات مچھلیوں، سخت کھال والے بحری جانداروں اور ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کی افزائش گاہ ہیں، بلکہ تمر کے جنگلات سمندری طوفانوں کے سامنے فصیل بھی بنتے ہیں۔ مینگروز کی جڑیں کیچڑ میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسا لوہے کا کام کرتی ہیں۔ خدا نخواست پانی کی پریشر بڑھتی ہے، طوفان آتا ہے یا سیلاب قسم کا کوئی بھی پریشر ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا زمین پھٹتی نہیں ہے بلکہ اس کو گھیر کے رکھتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ مثال دیا کہ مینگروز جو ہے وہ خاموش سپاہی ہیں جو ہمارے طوفانوں میں اور اس میں جو ہے نا ہماری دفاع کرتے ہیں۔
लेकिन ये बहुत बड़ी साहिली मरतूब जमीन अब सुकेड़ दी गई है। आपके कराची में जिस तरीके से कोस्ट पे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, उससे लाखों एकड़ पे मैंग्रोव जो होते थे वो इन्होंने काटे हैं। बर्थ बना रहे हैं, आयरन ओर बना रहे हैं, एलपीजी का बर्थ बना रहे हैं, फाटको का जो है, तो ये सब जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं मैंग्रोव्स की डिफॉरेस्टेशन में। लियारी और मलीर नदियों के किनारे पर तजावुजात भी इन पर बुरा असर डाल रहे हैं। इसके नतीजे में आलूदगी न सिर्फ दरख्तों की जड़ों को बल्कि उनमें परवरिश पाने वाले जानदारों को भी बर्बाद कर रही है। साहिल से लेकर तमर के दरख्तों में परवरिश पाने वाली हमारी कीमती मखलूक भी अपनी बका की जंग लड़ रही है। हॉक्स बे और सेंट स्पिट दुनिया के उन 11 साहिलों में शामिल हैं जहां कछुए हर साल अंडे देने आते हैं। कछुए भी खतरे में हैं, लेकिन उनके अंडे देने का इलाका कहीं ज्यादा खतरे का शिकार है। बड़े और बेहतर मगर हमेशा से गैर कानूनी हट्स कछुओं की अंडे देने की जगहों पर नाजायज कब्जा करते चले आ रहे हैं और शहरी इंतजामिया खुद इन तजावुजात के जुर्म में शरीक है। रात के वक्त कछुए, मासूम कछुए की जो मादा है वो आती है साहिल पर अंडे देने के लिए, और अगर इस साहिल को आप बिल्कुल लाइट जलाएंगे या वहाँ शोर करेंगे तो कछुए नहीं अंडे देंगे। अब डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो जो साहिल है जहाँ पर कछुए अंडे देते हैं उन तक वो तक भर चुके हैं और वहाँ अंडे देने की जगह गायब होती जा रही है। अगर इसी तरह डेवलपमेंट होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो साहिली पट्टी अभी हमें रेत की नज़र आ रही है ये भी भर जाएगी और पूरा का पूरा बीच जो है वो हटों से और मकानों से नज़र आएगा भरा हुआ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से बढ़ती हुई आगाही के बावजूद कीमती कुदरती साहिल आज भी तजावुजात, माफिया और प्राइवेट तामीराती मंसूबों की जद पर है। कई साल पहले जब मैंने यहाँ आना शुरू किया था तो उस वक्त यहाँ इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं थी, हट्स भी बहुत कम थी और मेन रोड पे जो वेयर हाउसेस बनते जा रहे हैं इनकी तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन अब जो है वो हर तरफ वेयर हाउसेस बन रहे हैं, हट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पीछे ही एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर इस तरह यहाँ पर हट्स बनती रहीं और अपार्टमेंट्स वगैरह बन गए तो इस जगह की जो हैबिटेट है वो तबाह हो जाएगी और इन फ्यूचर हमें जो है यहाँ पे कोई एज सच वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। साहिली पट्टी पर नस्ल दर नस्ल अपने ढब से जिंदगी गुजारती मछेरा बरादरी भी इंतहाई नुकसान उठा रही है, जितना कि यहाँ की नबातात और हैवानात। जो लाखों की जो आबादी है जो समंदर के किनारों पर रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो हर बुनियादी सहूलतों से जो है वो महरूम है। इनको ना पीने का पानी मैसर है, ना उनको सेहत की सहूलत मैसर है, बल्कि हम ये कहें कि वो जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनसे जो है ये महरूम लोग हैं, मार्जिनाइज लोग हैं, जो हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज किए हुए लोग हैं। तफरीह करने का अवामी बुनियादी हक भी साहिल समंदर को सिर्फ अमीरों के लिए मखसूस करने के इक़दामात से मुतासिर हो रहा है। चॉकलेट बंटी। बरसा बरस से बेशतर साहिली अराजी के जायज मालिकान को अहमियत नहीं दी गई। हुकूमतों ने अपनी मनमानी फैसला साजी के अमल में इन्हें कभी शरीक नहीं किया। इन मालिकान और मुतासिरीन को उनके हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले इदारों और नुमाइंदों से भरपूर तरीके से राब्ता करना होगा। इन्हें हर ऐसे मंसूबे को जो नज़रिए एतमाद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो चैलेंज करना होगा, जैसे समंदर से ज़मीन हथियाने के मंसूबे। रिक्लेमेशन के लफ्ज़ का इस्तेमाल खुद एक अजूबा है। इस लफ्ज़ का मतलब तो असल मालिक का किसी छिनी हुई शय को फिर से हासिल कर लेना है। कराची में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल गोया हड़प कर लेने के मानों में हो रहा है। चुनाचे DHA ने समंदर से फेज 8 में जो जमीन छीनी है उससे मलीर नदी का दहाना असल इलाके से आधा रह गया है। ये जो समंदर में आउटफॉल्स थी कराची के नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की, ये आउटफॉल्स सारी ब्लॉक की गई हैं।
क्योंकि इन आउटफॉल्स पे एलीट कॉलोनीज़ बनी हैं, इसी वास्ते कराची में सैलाब आता है अब। जैसे आपका ये गिजरी क्रीक है, ये जो मंजूर कॉलोनी का नाला है, इसका जो आउटफॉल था वहाँ सारी डिफेंस सोसाइटी ने प्लॉटिंग कर ली है। जो दो मेन नाले थे कराची के, चीना क्रीक बैक वाटर्स में गिरते थे, वो अब ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि मैंग्रोव्स को ख़त्म करके वहाँ केपीटी की कॉलोनी बना दी गई है। तो इसी वास्ते ये फ्लडिंग होती है इन इलाकों में। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं इन्होंने न सिर्फ कोस्ट को मुतासर किया है बल्कि शहर को भी खासा नुकसान पहुँचाया है। और फ़िशिंग कम्युनिटीज़ को, जो मछेरे हैं, उनका जो कारोबार था वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। सदियों से एक पैटर्न चला था, वो वेटलैंड था, आपने वेटलैंड को रिक्लेम कर लिया, वाइल्ड बर्ड्स आती हैं। आप सिटी लिमिट्स के अंदर, कैन यू इमेजिन कि कराची के डिफेंस एरिया के अंदर आपने एक बर्ड वॉचिंग एरिया बना दिया, वाइल्ड बर्ड्स आप देख रहे हैं, वो गोरा देखता है, वो तो कितना खुश होता है सारी दुनिया। अब हमारे लिए कुछ नहीं है, हम अपने हाथ से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या है, हम आपको बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं, आप क्या बना के दे रहे हैं? आप कराची के सिटीजन से, उनसे एक्सेस टू द सी छीन ले रहे हैं। आई थिंक रिक्लेमेशन शुड नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि रिक्लेमेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ना सिर्फ एनवायरनमेंट के बल्कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं। और वो जो फ्लो ऑफ टाइड्स है, टाइड्स की जो मूवमेंट है और सारे जो ओशनोग्राफी के डायमेंशंस हैं ना, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। क्योंकि ये रिक्लेमेशन ज़्यादातर DHA ने किए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किसी ज़माने में इसको टेकअप किया था कि ये जो फर्दर रिक्लेमेशन ऑफ लैंड है वो लीगल नहीं है, क्योंकि ये अलॉटेड लैंड में नहीं आता है। तो रिक्लेमेशन के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट व्यूज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कि फ़र्दर रिक्लेमेशन अलाउ नहीं की जा सकती है। जहाँ तक एनवायरनमेंट का ताल्लुक़ है, वहाँ हमारे ऊपर लाजिम है कि जो हमारा एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो उनको नोटिस दे अंडर दी पाकिस्तान एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कि आप जो हम वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं प्रोविजंस ऑफ लॉ को। समंदर से जमीन छीन लेने वालों के मुस्तकिल लालच के तुफैल न सिर्फ समंदर हमारे साहिल से परे धकेल दिया गया है, बल्कि माई कुलाची नामी सड़क के साथ बोट बेसिन के पीछे वाले पानी भी कम किए जा रहे हैं। वो हमारा बोट बेसिन है ना कराची में, वो बोट बेसिन तो एक किस्म से जिसको अंग्रेज़ी में बैक वाटर्स कहते हैं, कि जब भी ज़मीन समंदर को जॉइन करता है तो ज़मीन और समंदर के बीच में एक जगह ऐसा न्यूट्रल होता है जो उसको थोड़ा टाइम देता है कि अगर बारिश का पानी आता है तो वो एक फ्लड बेसिन बनता है कि फ्लड का पानी को रोकता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता फिर समंदर को जॉइन करे, या समंदर जब चढ़ के आता है तो उसका पानी वो लेता है ताकि ज़मीन पे असर ना हो। और यही बैक वाटर वो होते हैं जो कि मैनग्रूव्स, झींगे मछली, उनके अंडे देने की जगह होती है। और मैनग्रूव्स कुदरती फ्लड से रोकने वाली एक किस्म से दीवार बन जाती है। न सिर्फ वो बेतहाशा बारिश के पानी को न्यूट्रलाइज़ करती है, आबादी में जाने से रोकती है, वहाँ के मैनग्रूव्स को पैदा करती है जो कि फ्लड्स रोक सकते हैं। छः 7 साल पहले कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एक बाईपास बनाया जिसका नाम है माई कुलाची बाईपास। जब बनाते वक्त उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया कि ये बोट बेसिन की अहमियत क्या है, यहाँ कौन सा चैनल आ रहा है। 2 चैनल आ रहे हैं, सोल्जर बाज़ार ड्रेन, सिटी रेलवे स्टेशन ड्रेन, जो पूरे पुराने शहर का गटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब लेके